छुटते ही मारा करो, छुटते ही। तारीख है 5 फरवरी 2022 और समय हो गया है 031115 AM। बहुत बधाई टीम पेंटागन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉय बाइडेन टीम एंड डेल्टा फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी। एक बार फिर साबित कर दिया आपने। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नए खलीफा अबू बकर अल हाशमी के सफाये पे मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एसपीजी पोर्टस रैंक मेरी तरफ से $500 मिलियन फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के लिए। एक बार हमेशा याद रखो, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नया टेररिस्ट लीडर आए, छुटते ही मारो, छुटते ही मारो। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को मेरी तरफ से एक्स्ट्रा 100 मिलियन, एंजॉय द पार्टी, करो खर्च। ये इस बंदे का नाम था अबू बकर अल हाशमी। अबू बकर अल हाशमी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में कब आया? जब अबू बकर अल बगदादी को मारा गया। बगदादी के मरने के बाद उसकी जगह खाली हुई और ऑल ओवर वर्ल्ड से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री द्वारा तैयार की गई है। इसके अंदर अक्सर किसी ना किसी देश की आर्मी का हाईली ट्रेन्ड कमांडो को ही लाया जाता है। खुद सिमोन एलियोट इजराइल का आईडीएफ का कमांडो था, जी हां। और ये जो बंदा मरा है अल हाशमी, अभी इसका असली नाम ट्रेस कर रहे हैं। ये स्पेटनाज रशियन आर्मी का स्लिप था। स्लिप समझते हैं? भगोड़ा भग जाता है, भग जाए, भगा देते हैं। इसका जवाब जो है करमलिन और पुतिन देंगे। ये 3 बहुत बड़े ऑपरेशन दिखाने के चक्कर में था। और मेरी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती है। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था इसको डेल्टा फोर्स ने मार दिया है, पर क्योंकि किसी कारणों की वजह से न्यूज को रोका जाता है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ये लोग डेल्टा फोर्स से कॉम्पिटिट कर रहे थे। अबे तुम करोगे कैसे? एक बंदा वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बंदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी से नहीं है। करमलिन या पुतिन क्या बात करेगा हमसे? मैं तो यह जानना चाहता हूं, यह बात क्या करेगा हमसे? Vladimir Putin has no right to speak with United States of America's president because till date you can search, no one, not even a one slip of United States of America's Army's commando you ever found involved in any terrorist organization or running any terrorist organization. None. Now the American army has a full and fledged right to enjoy the party with $100 million from my side. This is the responsibility of Russian army. You have to answer us in ICJ. You have to answer us in Interpol court. You have to answer to international army. Why and how? While I already informed you
You have to provide us full and flash information of Abu Bakr al-Hashmi. Hezbollah informed us. Hezbollah directly informed me via their unregistered Twitter handle that, sir, this is the person. We don't believe in ISIS. We are not like a terrorist organization. That's why we are informing you. Till date, I never ordered to do any kind of military operation against Hezbollah. Hezbollah informed us that this is the guy, this is the person who is a slip of a Spetsnaz, highly trained, hardcore killer. Is now Islamic State of Iraq and Syria's new Khalifa. The Indian army has to answer. I already informing you so many times that the Narendra Damodar Das Modi and his team were involved in hijacking of international oil tankers of Britain, United States of America and India's. देर सवेर न्याय जरूर होगा. Justice delay, but justice can't deny. Remember one thing. अब समझने वाली बात क्या है? What we are doing? I'm informing you again that the Imran Khan, yes, Prime Minister of Pakistan, you can watch him, you can listen him, you can see him in international media. That Imran Khan is a new successor of ISIS. Yes. He is the chief of two military or militant organizations. One is the Islamic State of Iraq and Syria, and another is Al-Wahhab, who are involved in continuously two bombing operation in Somalia. In that operation, more than 150 family persons were killed, and the Al-Wahhab was took the responsibility. Yes, this is the person. Now the Islamic State of Iraq and Syria is running and funding by the Pakistan, Islamic Republic of Pakistan's Prime Minister. We are responsible to eliminate these kind of threats from the entire world. Yes. We don't scare, and we don't have any kind of boundaries, and we don't believe in any kind of boundaries. It's never a subject for us. We are JSR Securities. We are registered army. Even not like in a Blackwater. Blackwater was not registered in ICJ, and not they were certified by Interpol. JSR Securities is registered and certified by the both respected organizations. We continuously responsible to fund United States of America's army. If any responsible army from the entire world ask us help and fund, we will provide them. We are the richest army in entire world, fully weaponized. The last time why this guy Narendra Modi was shouting, because the reason is very simple, because his right hand Abu Bakr al-Baghdadi was killed by the United States of America's joint force of Delta Force and US Navy SEAL. I'm not saying that I was involved in there as an SPG, but the truth is, yes, Prime Minister of India, he has to answer us. He confessed. He has the roadside bombing code
He arranged 3 times secret meeting with Imran Khan in the Parliament of India. Imran Khan himself visited here in the black uniform. He was trying to activate yes, ISIS, Islamic asset. You don't believe. You don't have power. You don't have guts. Arube, darling, enjoy the party that you know him very well. Mr. Rabi Pizzada, Mr. Mahim Nawaz Sharif. I'm going to dance. Tang-a-tang. Because I'm at the right side. Taka-tak, 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 taka-tak. हम तो सोएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, जागेंगे तो भी पैसा कमाएंगे. मजा आ गया. Myself Hitesh Mandal, Twitter handle @HiteshRay1. चा. अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते. तुम लाते जाओ, मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी. देख लेना, देर या सवेर CIA आपको अपने आप बताएगा. हम भी इंटेलिजेंस में काम करते हैं सर. आपके घर में पानी पिलाने वाला, आपके घर में काम करने वाला भी हो सकता है कि मेरी टीम में से हो. मैडमो, बोलना नहीं चाहता, वरना तो आपके पीरियड की डेट बता दूंगा. यह है JSR इंटेलिजेंस. क्या दिमाग लगा रही हो हमें? मैडम के कब पीरियड चल रहे हैं, और हम पीरियड अटेंड करने में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं. जिस दिन पहली बार पता लगा था ना धरती पे आते ही कि यार एक ऐसी फोर्स भी है जिसमें सीधा गोली चलाने को मिलती है. मां चुदाओ ना बहन के लड़का, ऐसे मराने के लिए पढ़ना है, बंदूक लावे इधर. ट्रेनिंग में उसी दिन चले गए थे मैडम. मानवता की रक्षा इसी तरह से हो सकती है. तुम इस्लाम के नाम पे. अब मुझे एक बात बताओ. नाउ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हैज टू आंसर अस. यस, they are HR department, they are PR department. They have to answer us. Now you tell me, while the Abu Bakr al-Hashmi is a slip of a Spetsnaz, he is an Orthodox Christian. What he is doing inside the Islamic State of Iraq and Syria? Because it's a hardcore militant organization. It has no feelings for Islam. They don't believe in teaching of Islam. Yes, Russian is an Orthodox church. Not even a one person you can go to find out inside the Russia they are Catholics. No, they are Protestant. They are Orthodox. Yes. Abu Bakr al-Hashmi is just a name to run the organization. Now I'm going to answer you. I informed IB. I tell them I'm the IB chief. Okay. Good. I informed research and analyzing them. And that is that this guy is under Interpol Orange Corner notice. I ordered, because I am 946 Interpol chief, took him under Red Corner notice. That NSG, National Security Guard of India, is opposing us. You know what you are doing? Now the Nirvana has to answer us. Yes. Because they are trying to run their organization and their government with the help of ISIS. What is ISIS? Nothing. गोली मार देंगे बेटा.
याद रख लेना। अगर किसी समय इमरान खान की न्यूज आ जाए ना तो घबराना मत, वजह बता रहा हूं। वो अमेरिकन आर्मी वाले हैं, समझ में आई? इंफॉर्मेशन मिलते ही ठोक देंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता, कहीं घुस के मारेंगे। पाकिस्तान एक बार झेल चुका है अबोटाबाद, ओसामा बिन लादेन को ला करके, समझ में आ गई? लेने पंगे ले लो ना, जाओ। लिटिल बिट डार्क। कार्बन। अब कहोगे यार बीड़ी पीने से कार्बन? नहीं भाई साहब, ये भी एक रहस्य है। अब बात आती है पूरे विश्व में चल रहे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। ओए ईदी अमीन, भगियो मत। इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका खेला। न्यूज में कुछ एक न्यूज मीडिया में दिखा दो कि ईदी अमीन मर गया, और ईदी अमीन बैठ गया आराम से वहां पे जो है बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। अच्छा मार हम देंगे। कल बात हो रही थी मेरी ईदी अमीन से हॉटलाइन पे। ईदी अमीन, ईदी हंसी मजाक तो चलती रहती है आपस में। ईदी अमीन कह रहा यार मंडल तूने डायलॉग बढ़िया चेप दिया सबके। मैं क्या, हाँ इंडिया में अफ्रीकन आया ना, तो मैं कहा भाई ड्यूटी कर लो सोमालियन पुलिस वाले। मैं कहा यहाँ क्या तुम क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली खरीदने आए हो? कह रहा यार बंदे गए थे वापस आगा, फेयर एंड लवली नहीं मिली। मैंने कहा तो क्या हो गया, हेयर डाई खरीद के ले आता, वही लगा लेता मुंह पे, कई कलर की मिलती है। समझ में आ गई? मैं तभी समझ गया कि ईदी अमीन जिंदा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये खेल ये खेल जो है ना बहुत पुराने हो चुके हैं। जेएसआर इंटेलिजेंस का नाम सुना है? अबे हम हर जगह हैं, समझ में आई? बाइडन जिस दिन से इराक में काम कर रहा था ना, मैं उसी दिन से समझ गया था। बाइडन जो है इराक में काम कर रहा था, फिर वो शपथ ग्रहण के लिए आया, और शपथ ग्रहण के बाद जो है फिर इराक में पहुंच गया। बेटा तुम सब पिटोगे सब। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को। समझ में आई? मैंने सीधे तौर पे कहा, देखिए अल सबब के मामले में मरियम नवाज शरीफ के ऊपर सिकंजा तो खैर नहीं कसेगा, हाँ स्कैनिंग रडार लगा हुआ है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ एक टीचर भी है। हो सकता है कि महिलाओं को बरगला करके, क्योंकि अब जैसा मुझे कह दे आरएसएस में, तो मैं आरएसएस में डायरेक्टली कभी गया नहीं, घुसा नहीं अंदर, मगर जब तक क्लीन चिट नहीं आती है। और बजरंग दल ने कभी भी जो है ना भारत से बाहर काम नहीं किया। इनकी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल जो कि हिंदुओं पे हमला होने पे ही जवाब देते हैं, वैसे कोई ऑपरेशन रन नहीं करते। हाँ मैंने देखा यार, मैं देखा हूं बजरंग दल में, मैंने जाकर देखा हुआ। तो सीआईए को तो मैं ये कहूंगा कि आप बजरंग दल के मामले में आप और विश्व हिंदू परिषद के मामले में आप टेंशन मत लो, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंडिया में प्रेशर ग्रुप भी नहीं है, बहुत एहतियात बरतते हैं ये लोग। जब कहीं पे अचानक मुसलमान दंगा फसाद भड़का देते हैं ना, तभी जवाब देते हैं लोग। लगातार 3 या 4 वाकयात ऐसे हुए। भोजन कीजिए, नहीं अभी सो के उठाओ यार। जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इन्वॉल्वमेंट जो है ना बहुत बाद में पाई गई है। वो भी तब
जब हमला मुसलमानों ने कर दिया इस्लाम के नाम पे, हरकतुल अंसार लश्कर तैयबा, कल मैं यही पढ़ा रहा था। मालदा टाउन हमले के बाद आज देखो, आजाद मैदान, मालदा टाउन, मालदा और मुजफ्फरनगर, ये 3 ऐसे इंसिडेंट थे जिसके जांच के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें कुछ मुसलमानों की हत्या हुई है और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का नाम आता है, तो मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी है और बहुत बुरी तरह करी थी। मुजफ्फरनगर कांड में तो मस्जिदों से AK-47 निकाल के जाट हरियाणा और यादवों और मतलब हिंदुओं की पंचायत पे सीधी फायरिंग कर दी गई थी। इसलिए उस मामले में इंडियन आर्मी को भी क्लीन चिट मिलेगी और यूपी पुलिस को भी, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर अरुण कुमार की जांच में मस्जिदों से जो वेपन प्राप्त हुए वो ऑब्जेक्शनेबल थे, फुली ऑटोमेटिक। हिंदुओं के मंदिर में नहीं मिलते, तलाशी ले लो आप कहीं। यहां पैसा भोजन मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा, हथियार नहीं होते। वो तलवार चक्कू छुरी तो यार अलग चीज है, वो भी इतने नहीं। भारत में ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आज तक नहीं बनी जो हिंदुओं के लिए हथियार उठा ले, ये ध्यान रखिएगा। इस मामले में मैं इराक और सीरिया पुलिस और स्पेटनाज को वार्निंग इशू करते हुए पूछना चाहूंगा, आप लोग इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को खत्म करोगे या नहीं? और स्पेटनाज से कैसे ये व्यक्ति जो कि रशियन आर्मी का ट्रेंड कमांडो है, ISIS तक पहुंचा। इसने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डिजाइन किया। इसकी ट्रेनिंग पीओके में कैसे हुई, इसका जवाब पाकिस्तान की सरकार देगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित गवर्नमेंट है। कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ यह बताना जरूरी समझेंगी अपने भाषण में, कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या गुलाम कश्मीर में किस प्रकार रशियन आर्मी का एक भगोड़ा या रशियन आर्मी द्वारा एक व्यक्ति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9000 कमांडोज तैयार करता है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के। जी हां,
दाल बीरेन, मसूर की दाल है। मौलाना मसूद अजहर का कोड, मौलाना मसूद अजहर की ऑर्गेनाइजेशन ने मसूर की दाल से होने वाली कमाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मांगी थी। मैंने यार मूली का अचार बनाया है, देखना है, तो बड़ा बढ़िया बनाया। इसमें यार ये 2 किलो मूली आ गई इसमें। हाँ 2 किलो मूली लगी इसमें। मोटी मूली का अचार बना दिया। इसमें सिरका, पानी, नमक, मिर्च ये डाला है। अब इसमें जो है ना लहसुन डालूंगा, लहसुन, अदरक, ये ठीक है। मिक्सर होता है ना उसका ढक्कन है। तो अलासमी जो है 3 बड़े ऑपरेशन दिखाने के मूड में था। पहला पीओके से 9000 कमांडोज कश्मीर में घुसाने के मूड में था। दूसरा ऑपरेशन मरियम नवाज शरीफ के जलसे के बहाने खालिस्तान मूवमेंट करने के लिए वो पाकिस्तान में गुजरा था। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। मरियम नवाज शरीफ का जो लश्कर आ रहा था ना, बस हैंड ग्रेनेड फेंक दिए बीच में, फटे नहीं। उनकी जरूर फट गई जो भगदड़ मची थी ना उस दिन। लॉन्डो ने क्या करा, जेएसआर सिक्योरिटीज में नए लड़के भर्ती हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ का उधर से काफिला आ रहा और 4 लाख से ज्यादा लोग इधर आ रहे थे स्वर्ण मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, हमारी टीम ने क्या करा, हैंड ग्रेनेड लिए, 10-12 हैंड ग्रेनेड फेंक दिए। वो भी डिफ्यूज टाइप के ही थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। हैंड ग्रेनेड बीच में देखा ना तो वहां उनके सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहे कि इंडियन आर्मी ने हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया है। हैंड ग्रेनेड तो फटी नहीं, बाकी सबकी फट गई। जो भगदड़ मची थी ना, देखने लायक सीन था उस दिन। हाँ, ये मरियम नवाज शरीफ गई गाड़ी में बैठ के और ये सब भग गए। और यहां लड़कों के सबके बड़े थप्पड़। तो सर हमने ना पब्लिक उतनी आ रही है क्या सर, ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या फेंका, क्या हैंड ग्रेनेड फेंक के देख रहे थे। अरे वो पब्लिक के बीच में। सर फटे तो नहीं हैंड ग्रेनेड। फिर गए आराम से। पाकिस्तानी आर्मी वाले पूछ रहे वहां पे, कहां से आए? हैंड ग्रेनेड गिर गए थे हमारे, लेने आए। कह रहे यहाँ क्यों फेंके? कह रहे प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या हो गया? फट जाता तो नहीं फटा ना। एक बचा था वहां पाकिस्तानी पोस्ट, एक बचा था सिर्फ। और इधर से बाकी करीबन 25-30 लड़े, वो सब भग गए पोस्ट खाली करके। कह रहे यार ये कैसी टीम है यार, तो हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। सब भग गए। लड़कों ने अपने हैंड ग्रेनेड ढूंढ डांड के फिर वापस आ गए। तो ये है जेएसआर सिक्योरिटीज। अब ये तो प्रभु श्री राम ही जाने कि ट्रेनिंग के बाद जो मई में जो टीम आ रही है वो क्या करने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय।